नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड कुछ उदास करके गया, कुछ गुस्सा दिला के गया। तो मिली जुली प्रतिक्रिया रही आज के एपिसोड की। तो रिव्यूज आए हैं आपके, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एबिगल जॉनसन का वीडियो, जो मैंने लाइव वीडियो में भी आपसे शेयर किया था कि बहुत ही बढ़िया वीडियो हमारे साथ शेयर किया है एबिगल ने। और ये हमारी न्यू मेंबरशिप में भी आई हैं, हंग्री स्पिरिट्स की मेंबरशिप में आ गई हैं और अब ये हमारे इस पब्लिक वॉइस वीडियो का भी हिस्सा बन गई हैं। तो आगे भी ये वीडियो भेजेंगी, मगर अभी आज इनके वीडियो से ही आज की इस जो पब्लिक वॉइस वीडियो है उसका जो है शुरुआत करते हैं। तो सुनते हैं, पहले एबिगल का वीडियो देखते हैं, फिर सुनते हैं आपके रिव्यूज। तो Good evening, Anju ma'am. Belated birthday wishes. I'm Abigail from Ontario, Canada, and I'm a great fan of Hungry Spirits. I recently joined as a member for Hungry Spirits too, and I'm also a very big fan of the show Anupama. I watch it with subtitles, but I watch different genres of serials and movies. As I'm from the media, I just love entertainment and television. However, I watched the episode today for 6th of March, and I liked the opening, how Anupama was emotional after watching her mother-in-law, Lee Labha. I'm sorry, I can't get that. Her mother-in-law and the emotions going on in between them. However, I'm a bit disappointed, or you can say it's weird to see Deepu stay on after they invited him. He's a boss. He should behave like a boss. And, in countries here, in the Western countries, etiquettes is that you just don't stay in your employee's house and, chit-chat. The conversation was very awkward. I think, Deep was going a little bit over his limits and trying to pray too much into Anupama's life. And as of one Raj, he's a nutshell that how much ever you crap open, it's never going to, give any results. He just has to behave and show his behavior. I also liked the emotions with the granddaughter, the great-grandmom, the grandmom, the grandpa. All that was a very good, emotional scenario. But, Deepu was the odd fit over there. Good that he left soon. Then they showed Anuj. So I was really worried, and I'm wondering where the track is going now, but it doesn't seem to be going in the direction where we could see man as a couple together. Next, talking about Anuj, I felt sad and bad to see how lonely he felt, and how he felt that the whole house is empty and nothing. And then Shruti calls him, and I think Shruti has got him on the point to where she wants him to be, as she has comfortably emotionally blackmailed him, talking about missing her parents. And then she started on the topic of the marriage arrangements, and I do not get it, is because if her parents were coming to America to speak about her marriage, obviously they brought the ring and the wedding gifts and whatever they wanted with them, along with them, to America. So it doesn't make sense that they just were visiting America without bringing those gifts and that ring. It doesn't, catch up in the scene. But,
you never know what makers can do in Indian television. So, and then again, Anuj starts getting emotional in the pre-cap. I saw seeing Anupama. I just don't understand why they're making him a confused person. And he's running such a big business. Where is the sense in all this? Thank you, Anju ma'am, for giving us this platform and for me that I can express my reviews and my views about the show Anupama. And glad to be a member. Good night. Take care. नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने अच्छे कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। और अंजू जी, आज का एपिसोड देखा, आपका आज का रिव्यू और कल के भी रिव्यू देखे। पक रहा है वनराज के दिमाग में अनुपमा के खिलाफ जबरदस्त खिचड़ी। ये होगा अनुपमा का जवाब। वनराज कितना भी माइंड गेम खेल ले, लेकिन अनुपमा वनराज की रग रग से वाकिफ है। वनराज ने अनुज के टाइम पे भी यही माइंड गेम खेला था। तब भी अनु ने वनराज को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अमेरिका में अनुपमा के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। दरवाजा बंद तो होगे ही, क्योंकि तोशु जेल जाएगा तो बा वनराज अनुपमा पर ही इल्जाम लगाएंगे। लेकिन इस बार अनुपमा बा वनराज चाहे किंजल क्यों ना हो, इस बार अनुपमा नहीं मानेगी और किंजल भी अनुपमा पर कोई भी प्रेशर नहीं डालेगी, क्योंकि वो भी तोशु को बार बार समझाती थी गलत काम छोड़ दो। और पहली बात तो तोशु पहले से ही गलत काम गलत लोगों के साथ मिलकर करता था, तो इसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है। वनराज की दोनों औलादें नालायक और घटिया है। अब पाखी अधिक को फंसाने चली है, लेकिन पाखी की किस्मत खराब है कि टीटू ने सब कुछ सुन लिया और अब वो अधिक का साथ देगा। टीटू सच में बहुत ही काबिले तारीफ वाला काम कर रहा है। जब अधिक पाखी को टॉर्चर करता था तब तो उसने अधिक का साथ दिया, पुलिस कंप्लेंट नहीं की। अब वही सारे सबूत पुलिस को देकर खुद को अच्छी मां साबित कर रही है। अनुज की प्रॉपर्टी अधिक तो क्या, तुम्हारा भी अधिकार नहीं था पाखी, और सब तो तुम्हारा और अधिक का डाइवोर्स हो गया है, तो अब किस हक से ये सब ड्रामा कर रही हो। धरे के धरे रह जाएंगे। और तीसरा, धरे के धरे रह जाएंगे आद्या के मंसूबे। इवेंट के बाद भी अनुज नहीं जा पाएगा इंडिया। अरे भाई, जब हीरोइन मुसीबत में होगी तो हीरो ही बचाएगा। अनुपमा को अनुज ही बचाएगा, क्योंकि जानता है कि अनुपमा ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो अनुज ही सारे सबूत लाकर पुलिस के सामने रख देगा और अनु को बचा लेगा। लेकिन अनुज गलती करता है और भुगतना अनुपमा को ही पड़ता है। जानबूझकर की हो या अनजाने में, गलती होती है। अनुपमा पर इसका असर बहुत बुरा होगा। जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, उसके साथ उसी के बेटे ने ये कांड कर दिया। तोशु और पाखी दोनों ही जेल जाएंगे, एक अमेरिकन जेल में तो दूसरी इंडिया में। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तभी तो वनराज का घमंड टूटेगा। और आपने कल कहा था कि अनुज और अनुपमा एक ही छत के नीचे आ जाएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर अंजू जी, ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। हीरो हीरोइन साथ में, फिर तो कुछ होता है वाली बात हो जाएगी। और आज के एपिसोड में वनराज का कहना कि जिंदगी भर खाना ही बनाया है, तब अनुपमा के बराबर पूरी जिंदगी मैंने खाना ही बनाया है, पर किसी ने कदर नहीं की, इसलिए कान्हा जी ने मुझे ऐसी जगह भेज दिया जहाँ मेरे हुनर की और मेहनत की कदर है। मुझे यशदीप सर जैसे इंसान के साथ काम करने का
करने का मौका मिला। हाँ, हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी हिंदुस्तान में भी खाना बनाती थी और यहाँ भी खाना बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे काम के बदले में डॉलर मिल रहे हैं। कमाल है ना? कमाल की बात है ना मिस्टर शाह? आप यहाँ डॉलर खर्च करके आए हैं और मैं यहाँ पर डॉलर कमा रही हूँ। बोलो। तब किंजल का कहना, वैसे मम्मी हमेशा से इम्प्रेशन रही है। देखिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन इतना पता है कि खाना बनाना, कुकिंग एक आर्ट है। आर्ट से भी बढ़कर एक पुण्य का काम है। जो लोग खाना बनाने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो खुद की रिस्पेक्ट के लायक नहीं होते। वाह, क्या जवाब दिया है यशदीप जी ने। लेकिन हर रोज अनुपमा को यशदीप जी को छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, पर इतना इंटरफेयर करने की भी जरूरत नहीं है अनुपमा की जिंदगी में। अनुपमा जानती है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह रही है। कहेगी एक ना एक दिन को, तो यशदीप जी को भी वो सच का आईना दिखाएगी। हाँ, आज वनराज ने कहा कि तुम मेरी पहली ग्रैंड चाइल्ड हो, जैसे आपके पापा मेरे पहले चाइल्ड थे। हाँ हाँ वनराज, तेरा पहला चाइल्ड इतना स्पेशल है कि फाइनली तेरा कपूत अमेरिकन जेल में जाने वाला है। बाके बाके सैल्यूट करने पर यशदीप जी और अनुपमा का हंसना, तब वनराज को बहुत बुरा लग रहा था। तब यशदीप जी का कहना कि जब अनुपमा जी को भी पहली बार पता चला कि मैं आर्मी मैन हूँ, तब उन्होंने भी इसी तरह सैल्यूट किया था। यशदीप की ये बात पे वनराज का जलते हुए देखना अच्छा लगा, और यश जी का वनराज को ये कहना भी बहुत अच्छा लगे कि आप भी हमारे रेस्टोरेंट में आ जाइए, मैं आपको भी छोड़ने अहमदाबाद आ जाऊंगा। सच में बहुत मजा आया, और सच में आज अनुपमा का बा का पैर दबाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वहां रुकना भी नहीं आया पसंद। लेकिन अब मेकर्स ही स्टोरी लिख रहे हैं, तो कोई क्या कर सकता है, देखना ही पड़ेगा। और इतने बड़े सदमे के बावजूद श्रुति नहीं भूली अपना टारगेट। श्रुति का यहाँ तक कहना सही था कि मुझे माता पिता की अस्थि भी नसीब नहीं हुई। ऐसा प्लेन क्रैश हुआ कि किसकी कौन सी अस्थि वही नहीं समझ में आ रहा है। वो दुख ठीक है, वो समझ में आया, वो वहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन और ये भी कहना अनुज को कि ना मैं ठीक हूँ और ना ही तुम ठीक हो, लेकिन फिर भी उसका फिर से वही गेम प्लान शुरू हो गया। अनुज ने भी एक बार में अपने मम्मी पापा को खोया था, इसलिए वो श्रुति का दर्द समझ रहा था। ये दर्द अनुज श्रुति का अच्छे से समझ सकता है, लेकिन बाद में जो श्रुति ने कहा उससे उससे सही उससे सच में शॉक लगा कि कोई लड़की अपने माँ बाप के जाने का दुख क्या होता है, ये तो वही जाने जिन्होंने खोया होता है। पर यहाँ माँ बाप की डेथ को यूज कर रही है श्रुति, उस इंसान को पाने के लिए जो उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ हमदर्दी रखता है। वाह श्रुति। और जब शादी पोस्टपोन हो गई थी, तो तैयारी किस बात की हो रही थी? जब तय होती तब तैयारी भी हो जाती। श्रुति को देखकर बिल्कुल दुख नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि ये अनुज को इमोशनल करके शादी करना चाहती है। अनुज कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है? इसको श्रुति भी चाहिए, इसको अनुपमा भी चाहिए। ये अपनी बेटी को भी नहीं समझाता है, उससे इतना डरता है जैसे अनुज की माँ हो। आज सच में अनुज का दर्द नहीं देखा गया, जिस तरह से वो ड्रंक कर रहा था और जिस तरह से वो गिरा। अनु मेरे पास नहीं आना चाहती, मेरे साथ रहना नहीं चाहती। उसे एक ही बात दिमाग में आ रही है कि अनु मुझसे प्यार नहीं करती। अरे अनु सिर्फ तुमसे ही प्यार करती, लेकिन वो कैसे आए? जब तुम्हारी बेटी उससे नफरत करती है तो वो कैसे आएगी तुम्हारे पास? अगर तुम्हें लाना है तो अपनी बेटी को समझाओ। अनुज को वो तो करना ही नहीं है।
लेकिन सच में आज अनुज का दर्द नहीं देखा गया। बहुत दुख हो रहा है अनुज की इस हालत को देखकर, लेकिन इसका जिम्मेदार भी अनुज ही है। अनुज को अब स्ट्रांग कदम उठाने ही पड़ेंगे। और जिस तरीके से वो श्रुति आज कह रही थी नीड्स यू, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, क्या जताना चाहती है? अनुज को और गिल्ट ट्रिप पे लेके जा रही है ये लड़की। उससे ये भी एहसास दिला रही है कि वो गिल्ट ट्रिप पे भी जाए और जब वो आए तो ये भी ना कहे कि मैं तुम्हारी वजह से आया हूं। यानी इमोशनली ब्लैकमेल कैसे करते वो श्रुति से सीखना पड़ेगा। लेकिन जब दूसरे दिन अनुज अब फिर से वो इवेंट दिखाएंगे, अनुज की आंखें सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को ही ढूंढती है और किसी को नहीं। सच में ये बंदा अनुपमा से इतना प्यार करता है और जानता भी है कि अनुपमा भी करती है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वो सारी बातें क्यों घूम रही वही समझ में नहीं आ रहा है। और आज तो तोशु ने अपनी माँ की सर की कसम खा ली कि मैं ऐसा कुछ गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इस लड़के ने कांड किया जिसका खामियाजा अब अनुपमा पहले भुगतेगी। लेकिन अब तोशु का साथ ना देकर बहुत अच्छा करेगी अनुपमा, वो देखने में मज़ा आएगा। लेकिन आज जो अनुपमा किंजू बेबी के घर पे रुकी वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब देखते आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और इतने अच्छा प्लेटफॉर्म के लिए अंजू जी दिल से थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और हाँ, जो अधिक और डिम्पी और टीटू वाला जो सीन था बहुत अच्छा लगा। अब अधिक भी उसे उसी की भाषा में जवाब देगा, उसके बारे में कल कहूँगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और आज अनुपमा पर बहुत गुस्सा आ रहा है, वो किंजल के घर पर रुकी। सच में ये कभी नहीं सुधरेगी अनुपमा। थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक ठाक था। आज अनुज का ड्रिंक करके ये हाल उसका देखा नहीं गया, कैसे उसने अपने होशो हवाश खो दिए हैं। बहुत दुख हुआ आज उसे देखकर। तीनों तरफ से फंसा हुआ है, श्रुति, आद्या और अनुपमा। करे भी तो क्या करे। आज भी उसने कहा कि मैं अनुपमा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, पर वो दिल और दिमाग दोनों से नहीं सोच पा रहा, करे तो क्या करे। उधर दीपू का भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर तरफ अनुपमा के मामलों में इंटरफेयर करना। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है जब कोई अनुपमा को कुछ कहता है, वो फटाफट से उसे जवाब दे देता है। जैसे राज ने भी अनुपमा की इंसल्ट की कि तुमने सारी उम्र किया ही क्या है रसोई में खाना बनाने के अलावा। अब वो पूरी तरह से अनुपमा के साथ रहना चाहता है। और जो अनुपमा जब अनुज से बात भी करती है तो भी उनके बीच में आ जाना, दोनों में दूरियां लाने का काम श्रुति आद्या से ज़्यादा तो दीपू कर रहा है। अभी तो हम सबको दिख रहा है कि दीपू अनुपमा को पसंद करने लगा है, देर बस इजहार करने की है। अगर दीपू ये भी कर देता है तो अनुपमा क्या करेगी और क्या कहेगी। मुझे लगता है कि अनुपमा को अपनी तरफ से दीपू को क्लियर कर देना चाहिए कि मैं आपको सिर्फ अपना बॉस और एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, इसके अलावा मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, नहीं तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। आज अनुपमा का शाह उसके मामलों में पड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और माना कि अनुपमा ने वनराज को मुंह तोड़ जवाब दिया जो भी उसने बकवास की अनुपमा के सामने, बट आज फिर से बा की सेवा में लग जाना और ऐसे मिलना जैसे कि पता ना हो कि बा कैसी है, कैसे वो अपने रंग बदलती है। माना कि अनुपमा बड़ों की इज्जत करती है, करनी भी चाहिए, पर आज अनुपमा का शाह वालों के साथ रुकना, फिर से बा करने लग जाना आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उधर श्रुति का अनुज को फ़ोन करना और इवेंट के बाद इंडिया आने को कहना, ये ज़रूर कोई श्रुति की बहुत बड़ी गेम है जो अनुज को पूरी तरह से फंसा देगी। जब किसी के पेरेंट्स की डेथ होती है तो वो तो पहले वो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाता। ये लड़की तो अनुज को शादी की चीज़ें दिखाने में लगी हुई है। और रही बात अनुज की, अनुज तो मुझे लगता है कि अभी जा ही नहीं पाएगा इंडिया, क्योंकि जो तोशु कांड करने वाला है उसमें अनुपमा फंसेगी और अनुज ही होगा जो अपनी अनुपमा को बचाएगा। चाहे वो ज़मीन आसमान एक क्यों ना कर दे, पर अपनी अनुपमा को बचा कर ही रहेगा और वह उतनी देर इंडिया नहीं जाएगा। उधर हमने डिम्पी, अधिक और टीटू का भी सीन देखा। अधिक का सीन मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि वो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो
इस पाखी को बहुत अच्छे से सबक सिखाएगा जो पापा की परी बनती फिरती है। और प्री कैप में देखा कैसे तोशू अपनी माँ की झूठी कसम खा रहा था जैसे बहुत सुधर गया हो। इसे के कांड का तो हम सबको प्रोमो में दिख ही जाएगा कि कैसी औलाद है जिसने अपनी माँ को ही फंसा दिया। आगे देखते हैं मैम क्या होता है कहानी में। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना था। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में मुझे बकवास तो लगा, आज इरिटेट भी हुई मैं, और कुछ अच्छा नहीं लगा। जैसे आज अगर अच्छा लगे कुछ लोग इस शो में, जैसे परी परी का वो निरागस प्रेम अपने दादी के साथ, परदादी के साथ जो भी, और वो खुशी जाहिर करना अच्छा लगा। बच्चे ऐसे ही होते हैं, फिर वो फाफड़ा बोलना, फाफड़ा है वो भी बहुत अच्छा लगा, और वो अच्छा लगा वहाँ पे कुछ थोड़ा सा ठीक लगा कि परी के लिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे दूसरा, और टीटू डिम्पी और अधिका भी अच्छा लगा कि कम से कम लॉजिकली कुछ कर तो रहे, कि वो पाखी का जो सामने आया कि इससे क्या करने वाली है ये, वो पुलिस जो उसके दोस्त है पुलिस उसके साथ मिलकर, तो यहाँ पे वो कुछ सोच रहे हैं कि हमें इसके कैसे निपटना, कैसे अलर्ट रहना, क्या करना है, तो कुछ लॉजिक बचता है भाई इनकी बातों पे। पर यहाँ पे अनुपमा का शाह परिवार के साथ आना, यानी किंजल के घर आना, वो लॉजिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। आई थी, चलो ठीक है भाई, वो मुझे पहले मैंने सोचा था कि आई थी यानी वो गुंडों के लिए, गुंडे रात में आते हैं और तोशू भी जल्दी नहीं आता, तो ठीक है भाई, तुम रात में सोने यहाँ आ रही हो, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे वनराज शाह आते से शुरू हो गया, अगर वनराज शाह अच्छे से बात करता, नॉर्मल बात करता, बाहर यानी ये सब अगर होता तो ठीक है, समझती हूँ कि बा के साथ रुकना है, और वो बच्चों परी को भी लगता है कि मेरी दादी पर दादी पुरानी बातें, ये सब एक फैमिली में अच्छा लगता है, तो शायद ठीक है अनुपमा अगर रुकी है तो। पर यहाँ वनराज शाह के आते ऐसे तेवर देखे, कैसे तेवर थे, फिर अनुपमा ने नहीं रुकना चाहिए था। वहाँ आते से उस पर एक तो वो उसके बॉस के लिए गलत बोल दिया कि क्या आप सबके साथ ही ऐसा करते हो। तो यहाँ मुझे दीपू के लिए बोलना है कि दीपू ये सब बातें क्यों कर रहा है। एक तो तोशू ने भी पहले बोल दिया उस दिन, यार जबरराज भी बोला, बा ने एक बार भी टोका नहीं, बा ने टोकी नहीं रही कि बेटा ये सब क्यों बोल रहा है, कुछ नहीं बोलने, कुछ भी नहीं बोला जब तक जितने टाइम तक दीपू दीपू था। तो यहाँ पे दीपू को अलर्ट होना चाहिए, अगर वो सच में अनुपमा से प्यार करता है और सच में अगर दोस्त मानता है उसे, तो यहाँ दीपू ने हम जिससे प्यार करते हैं उसको ऐसे बेइज्जती होते नहीं देख सकता, किसी लालचन नहीं सुन सकता। वो बात अलग है कि तुमको अनुपमा एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, बाद में ये सब इतना जल्दी कर रहा है ना, तो बहुत अजीब सा लगता है। इसको दीपू को यहाँ पे अपने आप को रोकना चाहिए। क्या मतलब आता है यार, किसी को तुम पसंद करते हो, प्यार करते हो, उसको मुसीबत में और उसको ताने सुनने पे मजबूर होना पड़ता है। तो ये क्या अनुपमा को सुनने में सच में बुरा लगता होगा, अच्छा लगता होगा क्या, कि वो आज भी वो, ठीक है अनुपमा की एक नेचर है कि मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं अच्छी हूँ, मैं अगर वो मेरे बॉस है और बॉस के साथ या किसी दोस्त है या फिर कोई भी वजह, तो मैं अपनी लाइफ में मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी करूँ मेरी लाइफ में, वो ठीक है एक जगह। पर ऐसा हम अनुपमा सोच सकती है पर दीपू नहीं सोच सकता। दीपू ने समझना चाहिए कि मेरी वजह से अनुपमा को ये सब सुनना नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अनुज ने भी यही कहा था कि अनुज को जब जब वो शुरू शुरू में आया था तो उसको हमेशा डर रहता था कि कहीं मेरी वजह से अनुपमा को मुसीबत ना जाए। वो बार बार बोलता था कि जी के काका को कहता था कि क्यों वहाँ जा रहे, क्यों उसको गणपति पूजन बुला रहे, कहीं मेरी वजह से उसको ये ना सुनना पड़े, कहीं मेरी वजह से उसको प्रॉब्लम नहीं। वो हमेशा दूर रहने की कोशिश करता था, पर किस्मत में उनको मिला है, मिले वो बात अलग है। पर यहाँ वो कोशिश करता था, वहाँ उसने लड़ा भी था कि जब उसको पता चला था कि तोशु उसको कितना गंदा बोल जाता है, दिवाली रात तो जाके वनराज को से लड़ा भी था, वो कहा भी था, उनके हाथ पैर भी जोड़े थे। तो यहाँ दीपू क्या कर रहे हैं, कहीं वो अनुज को भड़का रहे हैं, उकसा रहा है कि मूव ऑन करो, कहीं ऐसा, ये सब अच्छा नहीं लगता। दीपू इरिटेट कर रहा है, बहुत इरिटेट, यानी एक बॉस की हैसियत से नहीं रह रहा वो ऐसे। वो सही कहा आपने अंजू जी, मैंने पहले ऑडियो बना चुकी थी, पर आपकी बातें कुछ सुनी तो मुझे उसमें ऐड करने का मन किया कि बहुत अच्छा कहा कि यशपाल के साथ जो था एक बॉस वाला रिलेशन, वो होना चाहिए था, एक कड़क होना चाहिए था, बॉस है बॉस की तरह रहो। फीलिंग इतने जल्दी आ जाती है।
और एकदम सब जाहिर भी करना, उसका दिल जीतने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे जल्दी जल्दी कुछ करना चाहता है या जताना चाहता है। अनुपमा के जितने करीब करीब आएगा तो शायद अनुज मान जाएगा, ये करेगा। ये क्या तरीका होता है यार, मुझे नहीं अच्छा लगा। या मैं एक बार का श्रुति का बोल भी सकती हूँ कि श्रुति जो कर रही है तो कम से कम वो एक कि 4 साल से उसके साथ थी, एक उम्मीद के साथ जी रही थी। उसे शादी चाहती थी, एंगेजमेंट भी हो गई थी, तो उसका ठीक है। पर इसका दीपू का क्या? एक तो तुम्हारा पहला प्यार तुम्हें धोखा दे गया, जो तुमने कहा था, शादी वाले दिन गए, फिर एकदम से किसी और पे प्यार आ जाता है तो उसको खुश करने के चक्कर में तुम ये सब कर रहे हो। यही दिखता है दीपू का, ऐसा ही दिखता है। फिर आज छोड़ने आ गए। उस दिन उसका तोशु ने बोल दिया था अगर आ भी गए तो फिर रुकना ही नहीं था, वहां चले जाना था। अनुपमा का भी रुकना मुझे अच्छा नहीं लगा कि जब उसने आते से ही वनराज इतना कुछ बोल गया तो अनुपमा ने रुकना ही नहीं चाहता, बोलना था मैं जा रही हूँ, ये सब ताने हैं, ये सब बातें हैं। तो और बाने बाने क्यों नहीं रोका? जब वो ठीक है, वो बॉस के लिए बोलता है कि सबके एम्प्लॉय के लिए ठीक है वो, पर यहाँ जो वो खाने वाली बात को बोलता है कि खाना बनाना तुमने जिंदगी भर किया है क्या? अच्छा नहीं लगे जो दीपू तारीफ करता है अनुपमा की। तो क्या बा को यहाँ नहीं बोलना चाहिए था कि अरे तू ये हर क्यों, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? वहाँ बा ने टोकना चाहिए था कि क्यों अनुपम, बा का अपमान नहीं हुआ ये कि बा भी तो खाना बनाती, बा क्या करती बाहर जाके? बा भी तो उससे जिंदगी भर खाना ही तो बनाया बा ने भी, अपने बच्चों, 2 बच्चों के लिए, फिर बाद में कहीं भी बनाया ना, बहुत बार बा ने बनाया। तो फिर क्या बा के लिए ये बात नहीं होती है? तो बा ने यहाँ एक टोकना नहीं चाहिए था यानी। और ये सब अनुपमा क्यों नहीं समझ रही? मुझे आज अनुपमा पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि अनुपमा ये क्यों नहीं समझ रही है कि बा आज भी वैसी है, वनराज को सबसे पहले अहमियत देती है, आज भी वही है, इतने साल बाद मिली। और बा ऐसा कैसे कह रही है कि आई नहीं, मिलने नहीं आई, बाय बाय करने आ जाती है। अमेरिका जाते समय तो अनुपमा ने ठीक है उस समय बोलना नहीं चाहा, दीपू के सामने टालना चाहा, जो भी है। तो क्या बा किस मुंह से बोल रही है कि एक गिलास पानी पी जा? तुम्हारा बेटा चाहता था अनुपमा को देखना, चाहता था अनुपमा यहाँ आए करके नाम भी लेना सुनना चाहता था। किस बेस पे बोलते यार, सच में दोगले दोगले लगते, बिल्कुल दोगले। वॉशु थी और वो अनुज की बात कर रही हूँ। अनुज का दर्द ठीक है दिखता है, वो ना शराब पिया तो एक समय ऐसा लग रहा था कि बार बार वो जैसा गिर गिर रहा था और कैसे, तो मुझे लगा था कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं इसको हार्ट अटैक ना आ जाए, ऐसा लगा मुझे। इतनी पीती, उसको दिख नहीं रहा था कुछ, ग्लास भी नीचे गिरना, ये करना। और फिर अचानक से ये थोड़ा मेडकर ने थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया कि वो जैसे श्रुति का फ़ोन आता है तो एकदम उठ खड़ा हो जाता है और इतना स्ट्रांगली खड़ा होता है और अच्छे से बात भी कर रहा है और जैसे नॉर्मल बात कर रहा है। मुझे लगा था कि अब श्रुति पकड़ लेगी उसको कि अरे आपने बहुत ड्रिंक किए करके, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। श्रुति का आज इसलिए मैंने दोबारा दूसरा ऑडियो बनाया अंजू जी कि आज जैसे वो एक सवाल किया, बड़ा अच्छा लगा लाइफ में कि वो फ्लाइट क्रैश होगी तो उसमें सब कुछ जल गया, तो ये माता पिता जल गए जो पहचान में नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से उसको उसके अस्थियां भी नहीं मिली, ऐसा उसने वीडियो कॉल पे अनुज को बताया। तो फिर वो लहंगा रिंग ये सब कैसे बच गया? वो वहाँ जा रहे थे, सिर्फ डेट फिक्स करने जा रहे थे क्या? ऐसा ही थोड़ा लगा मुझे कि अजीब सा लगा ये सब कुछ। और यहाँ रखा है, सब दिखा उसको, और ये सब बताने का क्या यानी बिल्कुल क्लियर है कि एक तरफ ये आद्या के सामने कहती है कि मैं अकेली रह सकती हूँ, मैं अकेली सीख लूंगी, ये करूँगी, और एक तरफ उसको कह रही कि आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, अभी अकेला सीखना है तो फिर सीखो, ये होना चाहिए ना। अनुज ये बात को समझ नहीं रहा, उसको समझ में आएगा भी नहीं, अनुज को समझ में नहीं आएगा जब तक वो पूरी तरह से अनुपमा की तरफ से क्लियर नहीं होगा ना कि अनुपमा के दिल में आज भी मेरे लिए प्यार है। वो अभी भी कंफ्यूज, उसको लगता है कि प्यार नहीं करता, तो वो मान चुका है, मन में बना चुका है वो कि अनुपमा के लिए अब मेरी कोई जगह नहीं है। तो यहाँ वो जब तक उसको लगता है कि ये श्रुति क्या कह रही है और क्या कर रही है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक अनुपमा की तरफ से एक बार अगर अनुज के लिए क्लियर हो गया ना कि आज भी अनुपमा उतना ही मुझे प्यार करती है जितना तब करती थी, शायद उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ वो अरे नहीं आ रही तो अध्याय की वजह से नहीं कर पाएगी, तो यहाँ तब अनुज कुछ तो सोचेगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ ऐसा लगता है मुझे कि यह अनुपमा का तरफ से ऐसा कुछ, पर अनुपमा कैसे करेगी? हम अनुपमा को भी गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो सब अगर सच्चाई सारी जानती है कि अनुज आद्या नफरत करती है, आद्या श्रुति को माँ मानती है, अनुज की भलाई भी आद्या है, आद्या से ज़्यादा प्यार करता है, ये सब अगर जानती है तो वो क्या है ऐसा करेगी? वो अपनी जगह सही है।
पर अभी देखते हैं। दीपू के लिए इरिटेटिंग लगा बिल्कुल, दीपू के लिए कोई रिस्पेक्ट कुछ नहीं लगा मुझे। बीजी का भी देखते, बीजी तो ठीक चल रही है, पर अभी बा बा फिर से डबल स्टैंडर्ड। और आज तो ये भी नहीं बोली, किंजल भी एक शब्द नहीं बोली कि पापा जाने दीजिए ना, क्या बोल रहे हो। अरे ये इस बात पे सब बोल सकती थी वो खाना बनाने के लिए कि माँ बाबा पापा हर औरत खाना बनाती, इसका मतलब ये नहीं होता। ये एक स्टैंड हर औरत अपने लिए ले सकती थी। यहाँ पे श्रुति का भी सॉरी किंजल का भी राइट बनता था उस बात पे बोलने के लिए कि खाना बनाने वालों को इतना गलत क्यों कह रहे हैं आप। तो यहाँ हर एक औरत अपने लिए यहाँ बोल सकती थी। यहाँ दोनों ही पीढ़ी की औरत ने बोली, ना ही नई पीढ़ी की किंजल, ना ही बा। तो यहाँ मुझे वो बहुत अखर गया वो शब्द कि बा ने यहाँ बोलना चाहिए था। कहीं तो उसको अंकुश इसको कोई लगाम लगाता ही नहीं है। बस यही बात है मुझे कह रही थी आज के शो में। और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। श्रुति का माइंड गेम तो दिख ही रहा है। कब तक चलेगा, कब अनुज को समझ में आएगा, कब ये। और ये तोशु का कांड भी है, बाकी का देखना बाकी है अभी। और आज का थोड़ा मुझे नहीं समझ में आया कि जो आज जो सीन दिखाया है कि अनुपमा को सर पे रख के हाथ रख के कह रहा है कि मैं नहीं करूँगा। फिर अनुपमा पुलिस तक भी बोल गई कि अनुज तेरे दो वो गुंडे और वो पुलिस बाद में सजा देगी, पर सबसे पहले मैं सजा दूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगा मुझे कि ये कब का है, पहले का या बाद का, कि सच में बचा लिया अनुज ने या इसने अनुज ने इन्होंने, तो ये पता नहीं किया, फिर उसके पहले का है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। सबसे पहले तो सुचि रवि जी, वर्षा जी और ख्याति जी और भी जिन मेरी बहनों ने मेरा ऑडियो मिस किया और जिन्होंने लिखा, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ में क्षमा प्रार्थी भी हूं कि मैं बड़े दिनों से ऑडियो नहीं भेज पाया, लाइव में कहने के बावजूद भी नहीं भेज पाया। तो खैर मैं कोशिश करूंगा कि फिर से ऑडियो लगातार भेजूं। मैं सुनता ज़रूर हूं आप सबके ऑडियोज़, वो वीडियो मैं सुनता ज़रूर हूं, लाइव में भी आता हूं। तो आज के एपिसोड में अंजू मैडम, जैसा कि आपने वो शुरू में वीडियो बनाई थी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये बुरा लगता है अनुपमा का बार बार वहाँ पे जाना। जैसे मैंने इसमें भी लिखा था, ऑडियो नहीं बना पाया, कि बैंगन लेके पहुंच गई वहाँ पे बाहर, और बाहर बनराज शाह को देख के उसको झटका लगता है, और उसके बावजूद भी एक फर्म स्टैंड जो कि अनुपमा का होना चाहिए कि वहीं से वापस मुड़ जाए। जो दरवाजे जिस कॉन्फिडेंस से 5 साल पहले बंद किए थे, वो कहाँ गई वो सारी चीज़ें। ये फर्म स्टैंड, क्योंकि ये तो शाह फैमिली ऐसी है कि ये कभी बदलने वाली नहीं है। ये तो इनका वही है कि जिधर वजन उधर भजन, इनका वही स्टाइल है। हमने कितने गिरगिट जैसे रूप बनराज शाह के भी देखे हैं, बा के भी देखे हैं। तोशु की तो चलो बात ही क्या कहनी, वो तो हीरा पैदा किया है बनराज शाह ने। तो मैडम, ये इस जाल में, इस चक्कर में फिर से वो फंसती रही। नहीं अच्छा लगता कि उनके साथ कैसे बैठ के वही हंसी खिसी बातें कर रही है। बनराज ने जैसे इतनी ज़्यादा बदतमीजियाँ की, ऐसी चीज़ें, उसको क्या अधिकार है। उसको सिर्फ डायलॉग बोल दिया कि तो आपको क्या, बाप को क्या। मुंह पे जवाब बा को देना चाहिए, जो कहती है कि ना याद नहीं आई। बोली ये देखिए, इसकी वजह से नहीं याद आई मेरी। आपने तो अल्टीमेटली अपने बेटे का ही साथ देना है। तो उन लोगों को कब ये चीज़ें रियलाइज कराएगी अनुपमा। तो दूसरा, मैडम, अनुज कपाड़िया अपने इस चक्कर में और ज़्यादा उलझता जाएगा जब तक वो आद्या को पटरी पे नहीं लाता है। जब तक आद्या के लिए उसका ये छोटी छोटी जो किडो वाला प्रेम है वो नहीं वो होता, ये सर चढ़ाने वाला प्रेम जो होता है, कहते हैं ना कि ओवर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। प्यार भी जब हद से बढ़ जाए तो वो खतरनाक होता है। अगर वो
आद्या को एक अच्छे बाप की तरह जबरदस्त तरीके से उसको समझाए कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, तो सारी चीजें, अब श्रुति तो छोड़ के चली गई थी, वापिस क्यों आई? आद्या की वजह से। अगर अनुज ने आद्या को कंट्रोल में रखा होता, आद्या का ये हंगामे, ये चीजें, वो ड्रामा नहीं करती, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया होता, एक सख्त बाप वाला, तो शायद आज श्रुति के माँ बाप भी जिंदा होते भाई, उसको यहाँ पे उनको आने की जरूरत ही न पड़ती, सब चीजें सॉर्ट आउट। अभी भी नहीं कर रहा वो, तो अब तो अनुपमा की जिंदगी भी ऐसे बर्बाद ही होगी। सब दीपू की बातें का बुरा तो लगता है, लेकिन वो बात बिल्कुल सही कही थी उसने, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा ऐसे। अनुपमा आज भी अनुज के साथ, आपको बताऊं, रहने के लिए तैयार है। आज भी सब चीजें सही हो सकती है अगर आद्या के दिल में अनुज अनुपमा की वो नफरत निकाले या सख्ती का इस्तेमाल करे कि चल भाई डॉक्टर के पास तुम्हें मैं जो है जमा कराता हूँ, तेरा इलाज कराते हैं उधर इस नफरत का, कि मेरा फैसला तो यही है, होगा तो ऐसा ही, सही तो यही है। अनुज को भी अब दिखाई तो दे रहा है कि कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही है भाई, और अनुपमा दिल से नहीं निकल रही है, तो फिर श्रुति के साथ क्या? और उसको कह भी रहा है हाँ अब तभी मैं बाहर आ जाऊंगा, वहां पे आ जाऊंगा, नहीं जा पाएगा। और अब बनराज शाह को देखते हैं कि यहाँ पे जो मेरा तो मेन फोकस ये है कि अनुपमा उन कागजात पे दस्तखत ना करे जिस जो है उद्देश्य से वो यहाँ पे आया है। बाकी वो वहाँ पे अधिक और ये सब क्या करते हैं, ये बाकी को भी सबक मिलना चाहिए मैडम, और यहाँ पे तोशु को भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये जो करतूतें तोशु ने की है। तो आज के लिए मैडम इतना ही, धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ऑडियो अच्छा लगा। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अंजू जी, आपके रिव्यू वाले ऑडियो देखे कल, बहुत अच्छे थे, बिल्कुल सही बोला आपने। तोसू को तो जेल पक्का है, पाखी को भी जेल जाना पड़ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा सच में। आज का एपिसोड देखा, बस पागलों की तरह एक्टिंग करने लगी अनुपमा, ओवर एक्टिंग। 5 सालों से बा ने नहीं पता किया अनुपमा कहाँ है। अब अनुपमा को देखो, वही बा के घुटने में दर्द, क्यों किंजल ने नहीं दबाए पैर बा के कभी? बा के तो छोड़ो, कभी तुम्हारे दबाए हैं पैर? अरे पैर का क्या, कभी खाना तक तो नसीब नहीं हुआ शाह हाउस में किसी के हाथ का मैडम को। पर सुकून बहुत मिलता है उनको सबकी शक्लें देखकर, सच में। आज ओवर एक्टिंग की दुकान लग रही है अनुपमा बा के साथ। बा कह रही है कि कभी याद नहीं आई। अरे कभी तुमने याद किया, पता करने की कोशिश की कि अनुपमा जिंदा है या मर गई है? जन्नत की सैर कर रही थी मैडम अनुपमा तो सब कुछ भूल गई, फिर सूरी सूरी करने लगी। बा दीपू की कन्वर्सेशन बनराज को अच्छी नहीं लग रही है, उसका हंसना अच्छा नहीं लगा, तो एज यूजुअल बनराज बोल ही पड़ा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? लो, वनराज का कटाक्ष शुरू हो गया, और अच्छा भी है। और आए ये मैडम वनराज के सामने, यही साव हाउस छोड़ा था, ये यही डिजर्व भी करती है। दीपू का कटाक्ष अच्छा लगा वनराज शाह को। मेरा रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लीजिए, अहमदाबाद छोड़ने आऊँगा आपको। अनुज, तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है। अब एक काम करो, दादी अम्मा को इग्नोर मारकर अनुपमा को अपना लो बस। दादी अम्मा से कह दो अनुपमा ही मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके साथ ही ज़िंदगी बिताऊंगा। तुमको मेरे साथ रहना हो रहो, वरना जो मन हो करो। मैडम को मज़ा आ रहा होगा सुनने में वनराज के ताने। चली आई मुंह उठाकर, अच्छा है सुनो। अब वनराज को क्या कहें, शर्म नहीं आती है उसको, यही नहीं पता कि वो भूल क्या रहा है और कह क्या रहा है। इन्होंने ज़िंदगी भर किया ही क्या है, खाना ही तो बनाया है, पर बाकी बोलती बंद है।
गूंगी गुड्डी की तरह बैठी है, कुछ बोल नहीं सकती है, वैसे जुबान बहुत चलती है कैंची की तरह। जो लोग खाना बनाने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो खुद की रिस्पेक्ट के लायक नहीं होते हैं। बहुत अच्छा कहा दीपू ने। वनराज जला भुना जा रहा है। अनुपमा को चाहिए था यही दीपू के साथ अपने स्टोर रूम में चला जाना चाहिए था, पर नहीं गई मैडम। अनुज, तुम्हारी अनुपमा को शाह हाउस वालों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। उनके पैर दबाना, खाना बनाना, सब्जी लाना, वनराज के ताने सुनकर, और उसके बाद आपको क्या कहना बहुत अच्छा लगता है। अनुज कपाड़िया, तुम मर ही जाओ तो अच्छा है। दादी अम्मा भी खुश, और अनुपमा का क्या, उसके लिए तो शाह हाउस वाले जिंदाबाद हैं ही। वनराज शाह अपने को समझता क्या है, किस हैसियत से कटाक्ष करता है अनुपमा पर गलती उसकी भी नहीं है। ना अनुपमा उसके सामने होती, ना वो कटाक्ष कर पाता। श्रुति अनुज से सिंपैथी गेन कर रही है। कितनी चालाक है श्रुति। अनुज को शादी की शॉपिंग की बातें बता रही है। अरे तुम्हारे माँ बाप मरे हैं, तुम शादी की बातें कर रही हो। इमोशनली घुमा रही है श्रुति अनुज को। अभी तक आद्या बुला रही थी इवेंट के बाद, अब श्रुति भी बुला रही है इवेंट के बाद, पर होगा वही जो कान्हा जी चाहते हैं। डिम्पी और टीटू ने अधिक को पाखी की पूरी सच्चाई बता दी। टीटू ने अधिक को वार्न कर दिया है और अब पछताए होतगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सोच रहा है अधिक कि पाखी को मैंने प्यार क्यों किया। वाह पाखी, किस हद तक गिर गई थी तुम। ड्रिंक करो, पार्टी करो, पर अपनी बेटी का और घर का कोई ध्यान नहीं। अधिक ने एक्सेप्ट किया कि मम्मी के समझाने पर मैं सुधर गया। आज अधिक का दर्द भी पता चल गया। अब अधिक ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और अच्छा भी है। और अंजू जी, जो आपने कहा था कि पाखी भी जेल में होगी, अब हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। और प्री कैप में देखा, तोशु अपनी माँ की कसम खाता है और कह रहा मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। उस पर अनुपमा का कहना, अनुज बाद में मैं सबसे पहले तुम्हें सबक सिखाऊंगी अगर कोई गलत काम किया तो। अनुज फिर अनुपमा को इवेंट में ढूंढ रहा है और फिर दोनों का आमना सामना। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका वीडियो भी देखा कि इतने बड़े हादसे के बाद भी श्रुति अपना टारगेट नहीं भूली और वो माइंड गेम खेल रही है। खुद अनुज को इमोशनली वो करके अपने पास रखना चाहती है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा अनुज के लिए, श्रुति के लिए तो नहीं, क्योंकि श्रुति से अगर भावावेश में अनुज शादी कर लेते हैं तो खुद के ही साथ गलत करेंगे। और अनुपमा को मैंने कल भी अपने ऑडियो में भी कहा था, आज आप सबने भी कहा कि क्यों अनुपमा वनराज शाह की बातों का जवाब दे रही है। और बा ने ये पूछा कि अनुपमा तुमको हम लोगों की याद नहीं आई, तो बा आप लोगों को भी तो मतलब के सिवाय अनुपमा की कहाँ याद आती है। और उस दिन जिस दिन शाह परिवार में वनराज शाह सबके सामने सरेआम अनुपमा का अपमान कर रहा था, तब तो बा ने एक शब्द भी नहीं कहा। और अभी भी बा आप अपने मतलब से ही आई है, आपको शाह उसके पेपर में एनओसी पे अनुपमा की साइन चाहिए इसीलिए आई है। लेकिन अनुपमा और अनुज की फीलिंग का लोग कब तक फ़ायदा उठाएंगे अंजू जी, मेरी समझ में नहीं आता। और पाखी के बारे में अधिक को बताया डिम्पल और तपिश ने कि ये इस तरह का वो खेल रही है, तो अधिक ने भी बताया कि मैं गुस्से में आ जाता था, लेकिन ये इसका भी मैंने वीडियो नहीं बनाया होता, इसकी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो मुझे मालूम नहीं था कि ये इतनी हद तक गिर सकती है। अधिक आपको पता होना चाहिए था कि ये वनराज शाह की बेटी है, ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और बा के पैर दबाना, यशदीप जी सच में अनुपमा के बॉस हैं, तो ये बार बार अनुपमा की इतने क्लोज जाने की कोशिश करना, हर बात में अनुपमा की इतनी ज़्यादा मदद करना, मानती हूँ कि उनको एक तरह से अच्छी दोस्त की तरह फीलिंग है, लेकिन एक लिमिट अनुपमा को खुद ही सेट करनी होगी, क्योंकि अनुपमा को वो दिया जी ने भी बता दिया है कि यशदीप जी तुम्हारे बारे में क्या फील करते हैं।
हालांकि यशदीप जी ने कभी बताया नहीं है अनुपमा को कि वो क्या फील करते हैं, लेकिन अनुपमा अब समझ जानी चाहिए। और आज अनुपमा का अंजू जी मुझे शाह उसमें वनराज के सामने बोलना मेरे को अच्छा ही नहीं लगा। जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि किसी को अगर इग्नोर करो तो वो उसकी सबसे बड़ी इंसल्ट जैसा होगा, तो वो दूसरी बार अपने आप को कुछ प्रेफरेंस देना ही भूल जाएगा। एक बात तो आज अनुपमा ने वनराज को सही की कि आप कही कि आप यहाँ डॉलर खर्च करके आए हैं और मैं यहाँ डॉलर कमाती हूँ। मैंने खाना बनाने के अलावा हालांकि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन उस खाने की कदर करने वाले यहाँ लोग हैं। अब अनुपमा को मुझे नहीं लगता अंजू जी कि किंजल के घर बार बार जाना चाहिए, क्योंकि एक तो किंजल भी सेल्फिश है और अभी अनुज की आज पीड़ा नहीं देखी गई मुझसे। सच में बहुत दुख हुआ मुझे अनुज को तकलीफ में देखकर। पर अनुज, आप अभी भी ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपने भी कुछ गलत किया था? अनुपमा मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? अनुज के दिमाग में अभी बस यही बात चल रही है कि अनुपमा मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। तो क्या आपने अनुपमा की इंसल्ट करने के लिए आद्या को कभी रोका? आपने कभी उसे समझाया कि नहीं तुम अब नहीं बोलोगी इनके बारे में? आद्या के पास तो अनुज आपकी कुछ चलती नहीं है और बार बार आप अनुपमा चाहिए, तो एक साइड आप अपनी क्लियर कीजिए ना। सच में अंजू जी आज का एपिसोड मुझे बहुत दुख दे गया। और कल के आपके सारे वीडियो देखे थे कि ये धरे के धरे रह जाएंगे आद्या के सपने। अनुज इवेंट के बाद भी इंडिया नहीं आएगा इन लोगों के पास में। मुझे तो ऐसा लगता है कि मान को मिलकर अब सब सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहिए। और ये एक डिवोर्स वाला भी सच सामने ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आद्या ने कुछ बड़ा झोल किया है। श्रुति का सच भी सामने आना चाहिए। नए आने वाले प्रोमो में अंजू जी वो तोशु अपनी माँ के सर की कसम खा के भी फिर भी गुनाह पे गुनाह कर रहा है। और वनराज शाह आज पूछने वाला होता क्यों है कि अनुपमा तुम अपने बॉस को दरवाजे तक छोड़ आई? किस रिश्ते से वह वनराज शाह पूछ रहा है अनुपमा से? अनुपमा का जवाब देना तो मुझे अंजू जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग मान से प्यार करते हैं। मान की नोकझोंक, मान के झगड़े, मान की बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होते देखना चाहते हैं, कि ये नहीं कि वो वनराज जैसे लोगों के मुंह लगे और अपना कीमती समय उस पर बर्बाद करे ताकि वनराज को लगे कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट हूँ। वनराज एक गली के कुत्ते के समान है कि जो भौंकता ही रहेगा। वो उसे भौंकने दो ना अनुपमा, आप इग्नोर करके अपने रास्ते पे चलो। और आपका लक्ष्य है यहाँ पे परदेश में आके अपने लाइफ को सेट करने का लक्ष्य जो है, तो उस पर ही ध्यान दो। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, क्या कहे इस एपिसोड के बारे में। मतलब 5 साल तक उस माँ को याद नहीं आया कि अनुपमा बेटी कैसी है, अनुपमा बहू कैसी है। बहू तो छोड़ो, बेटी कैसी है उसका खबर तो रखे। और फिर भी पूछ रही है, और वो इतनी बावली हो रखी है, बा 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 कर करके एकदम पागल दीवानी हो रखी है कि जैसे सब कुछ मिल गया उसको। लाइए ना, आपका पैर दबा देते, आपका पैर दुख रहा होगा, अमेरिका आई है। अरे यार, इतना भी मेलोड्रामा सही नहीं था। जिस गली को, जिस मोहल्ले को, जिस जगह शाह हाउस के दरवाजे आपने बंद कर कर आए थे, तो उनके आते ही हाँ पैर छू लेती, बात कर लेती। ये जो मेलोड्रामा दिखाया गया ना, पैर दबाना और
तूने याद नहीं किया मुझे 5 साल तक, तुझे ये नहीं समझ में आया। मतलब ये क्या है? मतलब वही वाली घिसी-पिटी अनुपमा जो मतलब अब बड़े जो जैसे नाच नचाते हैं वैसे वो नाच लेती है। वनराज को मुँह तोड़ जवाब दे रही थी, वो अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा देखकर। लेकिन सच में अपने थोड़े से एटीट्यूड को चेंज करती तो बा को भी समझ में आता है कि ये अनुपमा चेंज हो चुकी है। जब घर की यही बहू बाहर हो रही थी, तब उन्हें समझ नहीं आया कि वनराज तू गलत कर रहा है। सब बच्चे बचकर आ गए वही काफ़ी है, और खुद भी बचकर आई है वो काफ़ी है। किसी का बॉडी घर नहीं आया। पर बेटे ने पनौती बोला तो पनौती बन चुकी, क्या बोलते, पनौती बन गई। इट्स नॉट, आई एम नॉट एक्साइटेड कि देखकर ही मुझे इरिटेशन हो रहा है। आई कैनॉट हैंडल इट कि अपने यशदीप सर से मिला दी है, यशदीप सर को वो बार बार ताने कस रहा है। इज नॉट अ रियलिटी कि उसी समय चेक दे देना चाहिए, मतलब पीछे से चेक नहीं देना चाहिए, उसी के समय दे देना चाहिए कि मैं तो और ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आप डॉलर खर्चा करके यहाँ पहुँचे हैं, पर मैं यहाँ डॉलर कमा रही हूँ। और ये चीज़ जो वनराज बार बार बोलता है कि खाना ही तो बनाती आ रही हो, तो मिस्टर शाह, यही खाना आप उंगलियों में चाट चाट के खाया करते थे 25 साल तक। इसी उंगली से और इसी हाथों से आप वह अनुपमा के खाने को स्वाद बना के चाटा करते थे। कहाँ गया वो 25 साल वाला? और हमेशा साउस में आकर भी वो कभी कभी खाना बना दिया करती थी और अब खा खा लिया करते थे। तब नहीं समझ में आया कि ये बावर्ची शेफ बन चुकी। क्यों जाते हैं बड़े बड़े होटल्स में, शेफ का बना हुआ पिज्ज़ा बर्गर। आपकी बेटी जो बार बार इतनी सारी चीज़ को ऑर्डर्स करती है, आई कुड नॉट हैंडल इट। और तो और आज तो अलग ही टॉन्ट्रम देखना मिला कि अधिक ने अपनी जो मन की बातें 5 साल की वाली जो ट्रैकल चेंज करके बताई कि ईशानी को घर छोड़ के चली जाती थी, और ईशानी बार बार माँ 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 कर करके मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ करके वो मम्मी को संभालने के लिए बोलती। तो मम्मी तो संभालना दूर की बात है, मम्मी ने तो पार्टियां में घूमने की तैयारी कर रखी है। और तो और पार्टी में तैयारी कर रखी है, और प्लस मैंने आज तक नहीं सुना कि वनराज ड्रिंक करता है। ये पारितोष और पाखी ने तो क्या बोलते हैं, एबिलिटी पार कर गई। मतलब उन लोग को शर्म नहीं आता है कि ड्रिंक करना ही नहीं चाहिए। क्या संस्कार है वनराज शाह का? मैं ये अनुपमा का संस्कार नहीं बोलूंगी। वहाँ अनुज कपाड़िया का संस्कार क्या है आध्या के लिए, और यहाँ पे वनराज शाह का। ये मतलब पापा लोग का क्या कैटेगरी है कि बाप पिएगा तो बच्चे भी पिएंगे, बाप करेगा तो ये भी करे। लेकिन बाप तो पीता ही नहीं है। अनुज तो पता नहीं क्यों दिखाया जा रहा है कि टीआरपी गिराने के लिए या उस कैटेगरी को डाउन करने के लिए उसे ड्रिंक रेस्ट किया गया है, लेकिन सच में रिडिकुलस है। जो लड़के के बारे में कि मैंने तो अनुपमा आज तक कभी ड्रिंक में हाथ तक नहीं लगाया, और आज वो इतना खुला खुला ड्रिंक वहां पे पी रहा है, कितनी बार दिख रहा है। श्रुति का फोन आना, श्रुति से बात करना, और आई न्यू इट कि उसके मॉम एंड डैड गए हैं, क्रैश हुआ है, या जो भी मैटर है, वो बार बार एनालाइज करा रही है कि सब कुछ तैयारी हो गया था, मम्मी ने सब कुछ तैयारी कर लिया, तो बस हम कैसे शादी के लिए मना कर देना, ये सब चीज। मतलब ये मेलोड्रामा, कितना मेलोड्रामा है यार। और क्या अंशु दीदी एक प्रोमो है, या हाँ एक प्रोमो जैसा ही लगा कि अपने मेकअप रूम में अनुपमा बैठती है, और उसके मांग में सिंदूर लगा रहता है, और प्लस हाथ में चूड़ा कंगन। मतलब मुझे तो लगता है कि यशदीप से शादी कर चुकी है, वनराज से तो करने वाली नहीं है, और अनुज से वो बोली कि मैं दूर ही रहूंगी। तो मुझे यशदीप का ही पंगा लगता है, क्योंकि उनकी माँ वहां पे है, उनकी माँ वहां पे, वो माँ नहीं दिया होगा कि कंगन बेटा अब तू मेरी घर की बहू बन गई, ले बेटा तू चूड़ी पहन।
तो मुझे वैसे ही कुछ लग रहा है। उसके हाथों में जिस तरह से अनुज के सामने वो साड़ी पहना करती थी, सूती साड़ी, जिस तरह से उसका कैटेगरी, यार उसका मेकअप चेंज करो। देख-देख के उब चुके हो यार। अनुज कपाड़ी का ड्रेसअप चेंज हो गया, सबका ड्रेसअप चेंज हो गया। ये डिम्पल और अनुपमा एक ही माजने की लगता है। मतलब दोनों की ड्रेसअप चेंज नहीं हो रहे हैं, इन लोग के ड्रेसेस चेंज करो ना यार। और ये अनुपमा को क्या ये सूती साड़ी, और अमेरिका पहुंचाने के बाद स्वेटर वही, थोड़ा चेंजिंग करो यार। देखने में भी एबिलिटी लगता है कि यार थोड़ा मॉडलिंग टाइप में दिखाओ। ऐसा क्या कोई 80 साल पार कर गया या 55 साल पार कर गया कि वैसा चेहरा दिखाया जा रहा है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया जा रहा है। प्लीज चेंज इट। आई एम सॉरी अंजू जी कि मैं ये सब भी बोल रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए था। और प्रोमो में तो वही दिखा रहा है कि वो लोग देखते हैं और बेटा अपने माँ के ऊपर हाथ रख के बोलता है, मम्मी मैं कसम खाता हूँ कि ये काम नहीं करूँगा, और देखो वही काम कर बैठा। और ये चीज़ अनुपमा ने सही कहा कि इस बार अनुज कपाड़िया चाहे कोई भी वो माफ़ कर सकता है, लेकिन मैं नहीं माफ़ करूँगी। और अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब आगे का स्टोरी का थोड़ा मज़ा मस्ती देखते हैं कि आगे का क्या होने वाला है। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। अंजू मैम थैंक यू। टाइपिंग तो शायद पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर मेरा बेटा से बोलूँगी ट्रायल करेगा। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे ऑडियोज शेयर करने के लिए। और एबिगल जॉनसन आपका ढेरों धन्यवाद। आपने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो आप अनुपमा धारावाहिक के बारे में सोचती हैं। लैंग्वेज का इश्यू है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा कि आपने अपने वीडियो में आध्या की प्रॉब्लम को भी आपने एक्सप्लेन किया है, जो भी आपने कहा है टीन एजर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में, और आपने अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का भी एग्जाम्पल दिया है। तो बढ़िया है आपका और वीडियो, और आगे भी आपके वीडियोस का इंतजार रहेगा। बाकी सबका भी, बलदेव जी आपका भी ऑडियो इतने दिनों बाद सुना, उसका बहुत सारा धन्यवाद। और महिमा जी, मनीषा जी, कुमुदनी जी, वर्षा, ख्याति जी, सबका ढेरों धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जो लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, इन सब से एनकरेजमेंट लीजिए और भेजिए अपने ऑडियो या फिर वीडियो। इस नंबर पे, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.